آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ دل بدلی قانون کے تحت 16 اراکین اسمبلی کی نااہلی کے معاملے پر اسپیکر راہل نارویکر نے سنایا اپنا فیصلہ۔ شندے گروپ کے اراکین اسمبلی کو قرار دیا اہل۔ شندے گروپ میں جشن کا ماحول، ادھو ٹھاکرے گروپ میں چھائی مایوسی۔ ہٹ اینڈ رن قانون کے خلاف رکشا ڈرائیورز بھی اترے میدان میں۔ شہر و اطراف میں کیا چکا جام۔ آٹو رکشا نہ ملنے کے سبب مسافروں کو پریشانی کا سامنا۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے مشترکہ طور پر نکالا گیا ڈویژنل کمشنریٹ پر مورچہ۔ سڑک حادثات پر قابو پانے RTO دفتر اور دیگر NGOs کے اشتراک سے شروع کی گئی خصوصی مہم۔ صفر حادثات میری ذمہ داری کے تحت حادثہ مکت راستے نامی پروگرام منعقد۔ مرکزی وزیر مملکت راؤ صاحب دانوے بھی ہوئے ورکشاپ میں شریک اور حاضرین کی رہنمائی۔ اور سارتھی باٹی اور مہاجیوت نامی اداروں میں داخلوں کے لیے گئے امتحانات کا سوالیہ پرچہ پھر ہوا لیک۔ امیدواروں میں غم و غصہ۔ امتحانی مرکز پر کیا جم کر ہنگامہ اور پیپر ملتوی کر کے دوبارہ امتحان لیے جانے کا کیا مطالبہ۔ خاطیوں کے خلاف سبق آموز کارروائی کی بھی کی گئی مانگ۔ خبریں تفصیل سے۔ مہاراشٹر اسمبلی کے اسپیکر راہل نارویکر نے سب کو چونکاتے ہوئے 16 MLAs کی نااہلی کے معاملے پر اپنا فیصلہ شندے گروپ کے اراکین اسمبلی کے حق میں سنایا، جس کے سبب شندے گروپ میں جشن کا ماحول ہے، جبکہ ادھو ٹھاکرے گروپ پر مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ آیا رہے کہ آج ودھان سبھا میں 16 اراکین اسمبلی کے اہل یا نااہل قرار دینے پر فیصلہ ہونا تھا اور دوپہر ہی سے صدر ایوان یعنی اسپیکر کا فیصلہ پڑھا جا رہا تھا۔ آخرکار شام ہوتے ہوتے فیصلے سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ یہ فیصلہ برسر اقتدار شندے گروپ کے حق میں سنایا گیا ہے اور ایک ناتھ شندے کے گروپ کو ہی اسپیکر نے بالا صاحب ٹھاکرے کی اصل شیو سینا کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد شندے گروپ میں جشن کا ماحول ہے، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے گروپ کے خیمے میں مایوسی چھا گئی ہے۔ اس فیصلے میں پکش پرمکھ کا فیصلہ آخری ہونے کے ٹھاکرے گروپ کے دعوے کو بھی مسترد کر دیا گیا اور پارٹی سپریمو یا پرمکھ کو اختیار اعلیٰ دینے کو جمہوریت کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا ہے۔ نیز بتلایا گیا ہے کہ شیو سینا کے دستور میں بھی قومی عاملہ کے فیصلے کو آخری تسلیم کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد شندے گٹھ کے شیو سینکوں نے خوب جشن منایا۔ شہر میں بھی اسپیکر راہل نارویکر کے فیصلے پر متعلقہ گٹھ کے کارکنان میں خوشی و جشن کا ماحول ہے۔ شندے گروپ کے ترجمان و رکن اسمبلی سنجے شرساٹ کے گھر پر بھی جم کر آتش بازی کرتے ہوئے جشن منایا گیا۔ نئے ہٹ اینڈ رن قانون کو واپس لینے سمیت دیگر کئی مطالبات پر آج رکشا والوں نے بے مدت بند کا آغاز کیا، جس کے سبب مسافروں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ رکشا ڈرائیورز و مالکان کی تنظیموں کے اس رکشا بند کے سبب سڑکوں سے آٹو رکشا غائب دیکھے گئے۔ دوسری جانب ان رکشا والوں نے اپنی تنظیموں کی قیادت میں سینکڑوں کی تعداد میں ڈویژنل کمشنر کے دفتر پر مظاہرہ کیا اور نئے ترمیمی موٹر وہیکل قانون کو فوری واپس لینے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ رکشا والوں نے اس موقع پر غریبوں کو نہ ستاؤ، نیا موٹر وہیکل قانون رد کرو اور مودی شاہ شیم شیم کے نعرے لگائے۔ رکشا والوں کا یہ مورچہ بابا پیٹرول پمپ مہاویر چوک سے نکل کر ڈویژنل کمشنر کے دفتر پہنچا تھا۔ اس نئے قانون کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے مظاہرین اسے واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ان رکشا والوں نے آج سے بے میعادی بند کا اعلان کیا ہے۔ مظاہرین کے ایک وفد نے ڈویژنل کمشنر سے ملاقات کی اور انہیں اپنا مطالباتی محضر پیش کیا۔ اس موقع پر پولیس کا بھی بھاری بندوبست تعینات کیا گیا تھا۔ رکشا چالک مالک سنگھٹنا کے مطابق 8 جنوری سے جاری بے میعادی بھوک ہڑتال کی جانب حکومت و انتظامیہ نے کوئی توجہ نہیں دی ہے، جس کے سبب اس بے میعادی بند کا اعلان کیا گیا ہے۔ سنگھٹنا کے قائدین نے ریاستی وزیر عبدالستار کا قافلہ بھی روکا اور ان سے اس متعلق جواب طلبی کی، تاہم عبدالستار وقت نہ ہونے کی بات کہتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے، جس پر سنگھٹنا کے کارکنان نے نہایت غصے کا اظہار کیا ہے اور مطالبات منظور نہ ہونے تک ان کی لڑائی جاری رہنے اور احتجاج مزید تیز کرنے کا انتباہ دیا ہے۔
हम ये चाहते हैं सभी संगठन के, औरंगाबाद के संगठन के माध्यम से, कि ये काला कानून लाने के बाद ये अमित शाह और मोदी जी क्या अपना परिचय देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हम जो करेंगे मनमानी वो आवाम को सहना पड़ेगा, ये जनता को सहना पड़ेगा। आमची नेमकी मागणी एकच आहे, हिट अँड रन कायदा हा रद्द करावा. नवीन कायदा आलेला जो हिट अँड रन कायदा आहे, अमित जी शाह साहेबांनी जो अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे तो रद्द करावा. नाहीतर याच्यात काहीतरी बदल करून आम्हाला त्यांचा जाहीर काहीतरी आलेले प्रकटन पाठवावे, नाहीतर संपूर्ण राज्यभरात असेच आंदोलन चालू राहतील. नेमकं दुखणं म्हणजे ज्या ड्रायव्हरला 7,000 पगार नाही त्याला त्याच्यात संसार चालवणं आहे, किराया घराचा किराया देणं आहे, सारं विकतचं घेणं आहे, लेकराची शाळा बघणं आहे. तो पुरी 70 वर्ष जिंदगी जरी नोकरी केली तर तो 70,000 जमू शकत नाही, तो 7 लाख रुपये कुठून जमवणार आहे. बरं, एखाद्याला मारणं, त्याला सोडून जीव पळून जाणं हे माणुसकीचा धर्म नाहीच आहे, परंतु तो थांबबंदात त्याचा जीव जाईल. तो ड्रायव्हर असा डायलॉग मारतो की त्याला 4 दिवस झोपच येत नाही. आमचा ड्रायव्हर मोदी तुमच्या विरोधात असा डायलॉग मारेल की तुमच्या सरकारला काय, तुमच्या बीजेपीला आयुष्यभर झोप येणार नाही. त्यामुळे सावध व्हा. त्याचबरोबर आज आम्ही औरंगाबाद मधल्या जनतेची माफी मागत आहोत. आम्हाला नाईलाजानं बंद पुकारावा लागला, नाईलाजानं. आणि या लोकांना, या सरकारला जे आपण निवडून दिलं, हे नालायक सरकार, महागाई वाढवणारं सरकार, ऑनलाईन पावत्या देणारं सरकार, आमच्या रिक्षावाल्याला अगदी लपून पावत्या फोटो काढतात, त्यांचे लपून फोटो काढतात. ती हैवा वाळूची हैवा खुलेआम चालतात बिना नंबरच्या, त्यांना का पावत्या देत नाही, असा आमचा पोलीस आयुक्तांना सवाल है. इसी तरह हिट एंड रन कानून की मुखालिफत में बिड़किन में रक्षा ड्राइवर्स ने आज रास्ता रोको एहतजाज किया. इसके अलावा दीगर मज़ाफ़ात में भी रक्षा वालों ने रास्ता रोककर अपने एहतजाज का इजहार किया. 10 जनवरी बरोज़ बुध को बिड़किन के बस स्टैंड इलाके में यह रास्ता रोको किया गया. यह एहतजाज हड़ताल रिक्शा चालक मालक संगठन की जानिब से की जा रही है और उनका मुतालबा है कि हिट एंड रन कानून वापस लिया जाए और रिक्शा ड्राइवर्स के लिए आज़ादाना फलाही व बहबूदी मंडल बनाया जाए. इसी तरह औरंगाबाद स्मार्ट सिटी की बसों को सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में ही चलाया जाए. इस तरह के मुख्तलिफ मतालबात को लेकर रिक्शा मालिकान और ड्राइवर्स ने हड़ताल व चक्का जाम आंदोलन छेड़ दिया है. इस आंदोलन में सिर्फ एम्बुलेंस सर्विसेज को छूट देकर तमाम गाड़ियों को रोक देने, नीज़ ये एहतजाज 10 व 11 जनवरी इस तरह 2 रोज़ जारी रखने का ऐलान मज़कूरा संगठन ने किया है. चक्का जाम और रिक्शा बंद होने के सबब मुसाफिरों को मुख्तलिफ अदम सहूलियात का सामना है. अक्सर लोगों को आवाजाही के लिए 2 व्हीलर्स व दीगर गाड़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है. बिड़किन के अलावा मज़ाफ़ात, चीतेगांव, गेवराई, अलाना और दीगर मकामात पर भी रिक्शा वालों ने रास्ता रोको एहतजाज किए हैं. इस दौरान पुलिस का भी तगड़ा बंदोबस्त देखा गया. हिट एंड रन कानून के खिलाफ बिड़किन के रक्षा वालों ने भी आज रास्ता रोको एहतजाज किया, जबकि दीगर मसाफात में भी रक्षा वालों ने रास्ता रोककर अपना एहतजाज दर्ज करवाया. उन्होंने बताया कि इस ज़िमन में लोडिंग रिक्शा और एपे रिक्शा के ड्राइवर्स व मालिकान के एक वफद ने इलाकाई कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम के ज़रिए इस कानून के सबब उन लोगों को होने वाली परेशानियों से वाकिफ करवाया. हुकूमत के नाम एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया. जो केंद्र सरकार ने जो हिट एंड रन कायदा लाई है, जिसको लेके एक रोष निर्माण हो गया सामान्य चालक में. एक आम आदमी भी आज जो है मोपेड चलाने के लिए डर रहा है, तो हमारे जैसे छोटे मोटे काम करने वाले क्या करेंगे. तो हमने आज बंद रखकर पूरे मराठवाड़े में, पूरे महाराष्ट्र में बंद रखकर एक अच्छा संदेश दिया हमारे चालकों ने कि ये कायदा रद्द होना चाहिए. एक आदमी से अगर धक्का बुक्का लग जाता है तो वो 10 लाख रुपए और 10 साल की सजा और 8 लाख रुपए लाएगा कहाँ से. इसका विरोध कर माननीय विभागीय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ये एक निवेदन दिया है कि आप अपने रिकमेंड लगाकर केंद्र सरकार को ये कहे कि ये कायदा जो गरीबों के चालकों के हित में नहीं है, इसको त्वरित रद्द करना चाहिए और एक चालक और सामान्य नागरिक को इंसाफ देने का काम करे. ऐसे हमने आज जो है हमारे निवेदन में किया है. इसी तरह हिट एंड रन कानून की मनसूखी के मुतालबे पर महाराष्ट्र राज्य लोडिंग रक्षा सेना और अप्पे सेना की जानिब से अपना कारोबार बंद रखा गया और इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम इलाकाई कमिश्नर के सुपुर्द किया गया. ये इत्तला दोनों ही तंजीमों के बानी सदर सलीम पटेल वाहेगांवकर ने MCN को दी है.
ये प्रोग्राम आरटीओ, महाराष्ट्र राज्य मोटर ड्राइविंग स्कूल मालक संगठना, ओम श्री गणेश मोटर ड्राइविंग स्कूल और सांस्कृतिक ग्लोबल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के इश्तराक से संस्कृति ग्लोबल स्कूल में मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर राव साहब दानवे व ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के ग्रू मोटर ड्राइविंग स्कूल के डायरेक्टर मंदाव तामहनकर की खुसूसी मौजूदगी थी, जबकि शहर के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर विजय गाठोड़े, ट्रैफिक ब्रांच के सचिन इंगोले, असिस्टेंट आरटीओ मनीष दौंड, साबिक मेयर विजय औताड़े, महाराष्ट्र राज्य मोटर ड्राइविंग स्कूल के सदर ज्ञानेश्वर वाघोले भी इस प्रोग्राम के मेहमानान में शामिल थे। प्रोग्राम की कंपेयरिंग जानवी दलवी और संस्कृति मोरालकर ने की। आरटीओ ऑफिस और महाराष्ट्र राज्य ड्राइविंग स्कूल मालक संगठना के इश्तराक से सड़क हादसा पर काबू पाने की गर्ज से सिफर हादसात मेरी जिम्मेदारी के तहत हादसा मुक्त रास्ते नामी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम पसमानदा तबक़ात के तलबा भी CBSE पैटर्न पर तालीम हासिल कर सकें, इस गर्ज से उस वक्त के म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने 3 स्कूल्स CBSE पैटर्न पर शुरू किए थे। इसके बाद शहरियान और अवामी नुमाइंदों के इसरार पर इस तरह के मज़ीद 3 स्कूल शुरू किए गए, जिन्हें म्यूनसिपल असातिज़ा की जानिब से ही 10 दिया जाने लगा। मगर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने अपने ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा का मेयार बुलंद हो, उनकी हमजहत तरक्की के लिए क्राफ्ट टीचर्स और स्पोर्ट्स टीचर्स के अलावा CBSE स्कूल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर असातिज़ा के तकर्रुरात की हिदायत दी, जिसके बाद इन असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए इश्तिहार दिया गया और 300 अफराद ने यहाँ खिदमत अंजाम देने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए दरख्वास्तें दाखिल की, जिनका तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू लिया गया और 17 अहल उम्मीदवारों का तकर्रुर किया, जिनमें गुज़िश्ता रोज़ ज़िले के राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों अपॉइंटमेंट लेटर्स तकसीम किए गए, जो जल्द ही उस्मानपुरा, प्रियदर्शनी, इंदिरानगर, गारखेड़ा, चेलीपुरा, सिडको N7 और हडको N11 स्कूल्स पर रुजू हो जाएंगे। म्यूनसिपल इंतजामिया के मुताबिक जल्द ही स्पोर्ट्स और क्राफ्ट टीचर्स के भी तकर्रुरात किए जाएंगे। इस मौके पर रुकन असेंबली प्रदीप जायसवाल, म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर भारत तिनगुटे, कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे और समग्र शिक्षा अभियान के ज्ञानदेव सांगड़े भी मौजूद थे। बरेच मुलांचं कळ असतं की बरेच आई वडिलांचं आता ग्रामीण भागामध्ये तर आपण शाळा असतातच, परंतु शहरी भागामध्ये त्यांना प्रत्येक त्यांच्या आई वडिलांची इच्छा असते की चांगला शाळा आणि त्याच्यामध्ये इंग्रजी माध्यम, म्हणजे इंग्रजी माध्यम सांगत असताना आम्ही मराठीला प्राधान्य, मराठी चांगलं करायची। बरेच ठिकाणी तर आमच्या पट नसल्यामुळे बंद पडत आहेत, लोकांची कळ उर्दू शिकण्यामध्ये नाही आहे, मराठी शिकण्यामध्ये नाही, मराठी माध्यममध्ये शिकण्यामध्ये नाही आहे। त्यांना मराठी शिकायचं, परंतु इंग्रजी माध्यम शाळा CBSE अशा स्वरूपात जाण्याची त्यांची इच्छा असते। शासन म्हणून आपण मोफत जे शिक्षण आहे मराठी आणि उर्दूचं अत्यंत मोफत त्यांना आणणं सर्व आपण देतो। आता या इंग्रजी माध्यम सुरू केल्यानंतर बरेच नगरसेवकांचं, बरेच लोकांची मागणी आहे, त्या ठिकाणी शाळा बंद पडत आहेत, तिथं इंग्लिश मीडियम सुरू करावं। काही भाग सदन होऊन गेले, त्या सदन भागामध्ये त्या आपण इंग्लिश मीडियम आपण सुरू केलेल्या ज्या 30 संख्या प्रत्येक वर्षी आपण घेतो, परंतु जवळपास त्या 30 सीटासाठी जवळपास 300-400 अर्ज लोकांनी करतात। आतापर्यंत आम्ही जे शिक्षक आहेत मराठीमध्ये, मराठी शाळेतलं उत्कृष्ट शिक्षक। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शुरू किए गए 6 CBSE स्कूल्स के लिए 17 असातिज़ा का कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर तकर्रुर किया गया, जिन्हें राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए। पेपर लीक हो जाने के बाद इम्तिहान गाहों पर तलबा ने सरकार मुखालिफ नारेबाजी की और सारथी, बार्टी वो महाज्योति के इम्तिहान दोबारा लिए जाने का मुतालबा किया। एग्ज़ाम सेंटर्स पर तलबा को पेपर्स के A और B 2 सेट दिए गए थे, ताहम B सेट के बंडल पर कोई सील न थी, जिसके सबब ये पेपर दोबारा लिए जाने का मुतालबा करते हुए तलबा ने हंगामे किए और ज़ोरदार नारेबाजी की। नाजरीन, सारथी, बार्टी और महाज्योत में दाखिलों के लिए इससे कबल भी लिए गए इम्तिहानात में धांधलियाँ हुई थीं और गुज़िश्ता के सवालिया पर्चे की कॉपी सेट करके जारी साल के इम्तिहान के लिए सवालिया पर्चा उम्मीदवारों को दिया गया था, जिसके सबब
उम्मीदवारों में मुतालिका इंतजामिया के तई सख्त नाराज़गी पाई जाती रही है। उनका मतालबा है कि पेपर लीकेज मामलात पर काबू पाने के लिए न सिर्फ इम्तिहान मुलतवी करके फिर से एग्ज़ाम लिया जाए बल्कि इन मामलात में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तक़बिल में तलबा के साथ इस तरह के खिलवाड़ न होने पाएँ। रियासत भर में सारथी, बाल्टी और महाज्योत के लिए इम्तहानात लिए जा रहे हैं, जिसके तहत नागपुर, पुणे और औरंगाबाद शहर में लिए गए इम्तहानात का पर्चा लीक हो गया, जिसके सबब उम्मीदवारों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और उन लोगों ने इम्तिहानी मरकज़ पर ज़ोरदार हंगामा किया। दिलेले आहेत ए आणि बी सेट हा सील दिलेला आहे आणि सी आणि डी हा झेरॉक्स पूर्ण झेरॉक्स दिलेले आहेत आम्हाला। म्हणजे मूर्खपणा आहे हा सगळा। म्हणजे आम्ही मूर्ख आहे का सरकार मूर्ख आहे हेच आम्हाला कळत नाही मेन म्हणजे। आणि आम्ही करतोय कशासाठी? संशोधन करायचं म्हणलं आम्हाला खर्च लागणारच, त्याच्यामुळे आम्हाला सरसकट फेलोशिप पाहिजे, बाकी काहीच नाही आहे। विद्यापीठाच्या या भोंगळ कारभाराबद्दल सारथी बाटी महाजन सर्व विद्यार्थी विरोध करत आहे। 3 प्रकार घडलेले, एक तर जी आन्सर शीट आहे ती बिना सीलची आहे, झेरॉक्स काढलेली आहे आणि हिच्यावर इन्स्ट्रक्शन दिलेले हॉल तिकीटवर महाज्योतीने 6 नंबरचा जो पॉईंट आहे की जो टेक्स्टलीट बुक नंबर असतो तो सेम असल्याशिवाय घ्यायचा आणि तो सुद्धा बदललेला आहे। अशा या महाघोर कार्याचा काळा कारभाराचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि आमची सर्व विद्यार्थी एकच मागणी आहे की सरसकट फेलोशिप मिळालीच पाहिजे आणि आम्ही ते घेऊच। तुम्ही आज बघत आहात की हा सी पेपर दिलेला आहे असं आमच्या अज्ञात मित्रांनी सांगितलेलं आहे की या पेपरला सुद्धा सील नाही आहे। यावर्षी म्हणजे 24 तारखेला सुद्धा शासनाने परीक्षा घेतली होती, तोही पेपर ॲज इट इज पेपर विद्यार्थ्यांना त्यांनी दिला होता आणि आजचा सुद्धा पेपर जो आहे एक प्रकारे आम्हाला हा झेरॉक्स असलेला पेपर त्यांनी आम्हाला दिलेला आहे। ही आमची शुद्ध फसवणूक शासनाने केलेली आहे। तर ही स्वायत्त संस्था असेल। ह्या प्रकरणामध्ये असं आहे की बाकीचे पेपर जे आहेत तर ते सील नसलेले पेपर आम्हाला मिळाले आणि मागच्या वेळी आम्ही लहान बाळांना घेऊन एवढ्या लांबून येतो आम्ही परीक्षा देण्यासाठी आणि आम्ही धुळ्याहून आलो। माझं म्हणजे बरं नसताना हे वातावरण खराब असताना आम्हाला एवढ्या लहान मुलांना घेऊन बाहेर पडावं लागतंय। हे असं शासनाचं किती दिवस चालेल? मागच्या वर्षाप्रमाणे जसे दरवर्षी फेलोशिप सरसकट मिळायची तर यावर्षीही सर्वांना सरसकट फेलोशिप मिळावी अशी अरकान असम्बली के अहल या नाअहल होने से मुताल्लिक़ फ़ैसला आने से कबल शिंदे ग्रुप के रियासती वज़ीर अब्दुलसत्तार और उद्धव ग्रुप के सीनियर क़ायद चंद्रकांत खैरे ने बयानात दिए हैं। आइए देखते हैं इन लोगों ने क्या कहा। जो काही निकाल लागल त्या निकालाचा आम्ही स्वागत करू। पहिले आमच्यासारखा झाला तर ते उच्च न्यायालयावर जातील, उद्धव साहेबांची जे काही पिटिशनर आहेत आणि त्यांच्यासारखा झाला तर आम्ही उच्च न्यायालयात जाऊ। मग उच्च न्यायालयाचा निर्णय लागल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सहजासहजी हा निर्णय जाईल। मला असं वाटतंय की एकदा सर्वोच्च न्यायालयाची शिक्कामोर्तब झाला का नंतर मग बाकीच्या ज्या देशासाठी, बाकीच्या राज्यासाठी हे एक रुलिंग होऊ शकतो। अशा पद्धतीची ही आजची रचना आहे। आता ते त्यांना गुन्ह्याचा अर्थच कळत नाही, गुन्हा कशाला म्हणतात, आम्ही काय सराईत गुन्हागार आहे का? प्रश्न असा आहे का आम्ही जो उठाव केला त्याचं दुःख निश्चित त्यांना आहे। त्यामुळं ते जे बोलतात ते निराशाच्या भावनेने बोलतात आणि त्यांचे जे बोललं हे विरोधी पक्ष म्हणून त्यांची तितकी तुमच्यासाठी ही एक बातमी होऊन जाते आणि तुम्हाला विचारल्यानंतर आम्ही प्रश्नाचं उत्तर द्यायला आमची एक बातमी होते। मला असं वाटतंय की आमचे जे काही आहे सर्व नियमाप्रमाणे ते काम चालू आहे आणि नियमाप्रमाणे ते काम होणार नाही। त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं तुमचं वाक्य बरोबर नाही, तुम्ही असं कोणालाही चोर आणि वीर असं म्हणून तुमचं पद तुम्ही घाणेरडे करू नका। तुम्ही जर असं तुमचं स्वतःहून त्या ठिकाणी तुमच्या पदाला त्या घाणेरडेपणा आणत असाल तर तुम्ही कसले मुख्यमंत्री? आम्ही तर तुम्हाला घटना पाहिजे मुख्यमंत्री म्हणतो नाही। ते निवडणूक आयोगाने सांगितलं असेल परंतु सुप्रीम कोर्टात ते प्रकरण पेंडिंग आहे, तो निर्णय घ्यायचा बाकी आहे। नाही, त्यांनी खूप म्हणजे अतिरेक केला आहे आणि त्या अतिरेकाच्या दृष्टिकोनातून त्यांना असं वाटतं की आम्ही तो ज्या शिवसेना प्रमुखांनी यानं मोठं केलं, ज्या शिवसेना पक्षप्रमुखांनी उद्धवजी ठाकरे यांनी 2 वेळेस तिकीट दिल्यानंतर आणि पद पण दिलं, मंत्रिपद दिलं, सगळं दिलं, तरी पण हे त्यांच्या बाबतीत असं वाकडीकडे बोलत असाल तर जनतेला पटत नाही। मी तर शिवसेना आहे का, मला पटणारच नाही, पण जनतेला पण पटत नाही। त्यामुळे यांचा तो आहे येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये त्या ठिकाणी त्यांना त्याचा अनुभव येईल की लोकांचं काय प्रतिक्रिया आहे। लोक आता बोलत नाही पण आता लोक त्यावेळेस बोलतात। बंडखोरी करून खोक्याच्या माध्यमाद्वारे जर समजा ते बहुमत काढत असेल
तर जनतेच्या कोर्टामध्ये हे टिकणारच नाही आणि त्यांना खूप प्रचंड राग आलेला आहे जनतेला. आम्ही तर ग्राउंड लेवलचे लोक आहोत, कार्यकर्ते आहोत. आम्ही फिरत असतो एका आम्हाला लोक सांगतात असू द्या ना, किती दिवस राहिले आता किती दिवस राहिले. जर लोकसभेच्या बरोबरीने निवडणूक घेतली विधानसभेची तर संपला, पण जर समजा लोकसभेच्या नंतर विधानसभा 6 महिन्यांचा घेतली तोपर्यंत 6 महिन्यांचा रोज काही ना काही चालत राहील ना. आणि त्यामुळे त्यांना अनुभव येईल की लोकांची प्रतिक्रिया काय आहे. त्याच्या आधी लोकसभेत संपूर्ण महाविकास आघाडी मोठ्या प्रमाणात निवडून येणार, त्यामुळे आता त्याच्यानंतर मग त्यांना डाऊनच व्हावं लागेल की याने 8 महिने लावले आणि लगेच फटाफट करून त्या ठिकाणी मग हे घेतो ते घेतो. म्हणजे स्पीकर जे आहे, स्पीकरांनी त्या ठिकाणी ज्या दृष्टिकोनातून ज्या भावनेतून निकाल देण्याची तयारी त्यांनी दाखवली ही एक प्रकारचा संशयास्पद आहे आणि म्हणून आम्हाला त्या ठिकाणी त्यांच्याबद्दल काही अपेक्षा नाही, म्हणून आम्ही सुप्रीम कोर्टात जाणार आहोत. सिडको N7 में मौजूद म्यूनिसिपल सेंट्रल स्कूल के तलबा को तालीमी सैर के लिए सापुतारा ले जाया गया। तलबा की ये तालीमी सैर स्कूल के सदर मुदर्रिस शेख अहमद पटेल की रहनुमाई में करवाई गई। सापुतारा में मौजूद रोज गार्डन की तलबा ने सैर की और फिर हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, 2 व्हीलर राइडिंग, रोप वे, जिप लाइन, बोटिंग और वन भोजन का भी लुत्फ उठाया। दिन भर धींगा मस्ती करने के बाद तलबा और असातिज़ा ने वनी के सप्तशृंगी मंदिर का भी दर्शन किया। इस ट्रिप को कामयाब बनाने में स्कूल के सदर मुदर्रिस शेख अहमद पटेल, सुनंदा अरदवाड़, अनीता शेटे, संगीता अंबेकर, मंगल महाजन, अंजलि कुलकर्णी, मनोज अग्रवाल, वेंकट जाधव, वैशाली देशमुख, शुभांगी चौहान, दीपक पडुड़ और नॉन टीचिंग स्टाफ व क्लास 4th मुलाजिमा रेखा नायकर ने अहम रोल अदा किया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने गुज़िश्ता रोज शंभूनगर इलाके को विजिट दी और वहां के साकिनान से मुलाकात करके उनके मसाइल जाने और उन्हें फौरी राहत फराहम करवाने का तयक़ुन दिया। वाज़ेह रहे कि शंभूनगर इलाके की ख़वातीन ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से शिकायत की कि उन्हें सबसे बड़ा मसला पानी का है। आधे इलाके में पाइपलाइन डाली गई है और आधा इलाका पाइपलाइन न डाला जाने के सबब नो नेटवर्क जोन में शामिल है, जहां टैंकरों के ज़रिए उन्हें पानी फराहम किया जाता है, मगर टैंकरों का आने का कोई वक्त नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना रहता है। इसी तरह यहां से गुजरने वाले नाले पर हिफाजती दीवार न होने के सबब वो लोग हादसात की जद पर हैं और जंगली व मूजी जानवर नाले से निकलकर उनके मकानात में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ सफाई के इंतजामात भी दुरुस्त नहीं हैं। गर्ज़ ये कि उन ख़वातीन ने मसाइल के अंबार उनके सामने लगा दिए, जिन्हें सुनने के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें यकीन दिलाया कि न्यू वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट के मुकम्मल हो जाने के बाद उन्हें 24 घंटे पानी मिल पाएगा। इसी तरह वो जल्द ही नाले पर हिफाजती दीवार बनवाएंगे। उन्होंने इन ख़वातीन की काउंसलिंग करते हुए कहा कि शहर को साफ़ सुथरा रखना जितनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, उतनी ही जवाबदेही शहरियान की भी है। अगर वो अपने इलाके को साफ़ सुथरा देखना चाहती हैं तो घरों से निकलने वाले कचरे को गीला और सूखा अलग अलग जमा करें और घंटा गाड़ी के मुलाजमीन के सुपुर्द करें। गली में या डिवाइडर्स में कचरा हरगिज़ न फेंकें, जिस पर ख़वातीन ने उनसे ताउन का वादा किया। इसी तरह इलाके के साकिनान से प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी वक्त पर अदा करके इंतज़ामिया से ताउन की अपील म्यूनसिपल कमिश्नर ने उन लोगों से की। इस मौके पर जोन नंबर 8 के वार्ड इंजीनियर संजय कोमले, असिस्टेंट कमिश्नर भारत बिरारे, PRO अहमद तौसीफ और टैक्स इंस्पेक्टर्स व दीगर मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैरकानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने गुज़िश्ता रोज़ घाटी अस्पताल के दाखिली दरवाजे से लेकर जुबली पार्क तक कार्रवाई की और यहाँ मौजूद दुकानें, शटर्स, चबूतरे और टपरियाँ हटा दी। इस कार्रवाई के दरमियान म्यूनिसिपल अमले ने माजूर अफराद को निशाना बनाते हुए उन्हें अपनी दुकानें खाली करने का हुक्म दिया, जिस पर इन माजूर अफराद ने इलाकाई कमिश्नर से मुलाकात की और उनसे इंसाफ का मुतालबा किया। मज़कूरा कार्रवाई के ज़िम्मन में उन माजूर अफराद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वो यहाँ पिछले 30 तक 35 बरस से कारोबार करते हैं और फिर क्या वजह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कार्रवाई करके उन्हें बेरोज़गार कर रही है। आया रहे कि घाटी व जुबली पार्क इलाके में गैर मजाज कब्ज़ात के ख़िलाफ़ की गई कार्रवाई में कई दुकानें, टीन शेड व चबूतरे हटा दिए गए, जिनमें वो दुकानें भी शामिल हैं जहाँ कई माजूर अफराद अपने छोटे बड़े कारोबार करके अपना गुजारा करते थे और उनकी दुकानें पिछले 30-35 साल से यहाँ मौजूद थीं। मुतासरा माजूर अफराद ने आज डिवीज़नल कमिश्नर के दफ्तर पहुंचकर उन्हें अपना मेमोरेंडम पेश किया और फौरी ये कार्रवाई रुकवा कर उन्हें इंसाफ दिलवाने का मुतालबा किया है।
ते 10 वाजता 10:30 वाजता भेटले. आम्हाला आमच्या दुकाना पाहिजे, तिथेच धंदा होतो, कारण आम्ही खानावळ चालवतो आणि घाटीमध्ये बाहेर गावून येणाऱ्या लोकांचा त्याच्यावर आमचा उदरनिर्वाह आहे. हां, आता त्यांचं म्हणणं आहे की आता तुम्हाला हातगाड्या टाका. आता हातगाड्या अपंग माणसांना हातगाडी लोटायची कशी आणि चालवायची कशी आणि उदरनिर्वाह करायचा कसा, तात्पुरत्या स्वरूपात. हां ते आणि आता आम्ही जवळजवळ 75 वर्ष झालो. आता काय हातगाड्या लोटायचा टाईम आहे का आमचा? आता तुमची मागणी काय, तुम्हाला न्याय? आम्हाला दुकानं पाहिजे त्या कायमस्वरूपी. हम अपंग है, हमको जो है तो कॉरपोरेशन ने दुकानें दी है और हमारे पेट भरने के वास्ते दिया था और हमको जो है फिर भाड़ा माफ़ कर दिया. उसके बाद अभी टैक्स लगाया, अभी हम टैक्स भर रहे हैं और वहाँ पर वो घाटी के पास दुकाना है, तो जो घाटी के सर्वेंट जो आते हैं तो वो हमारे पास से वो सामान ले आते हैं, क्या भाजी तरकारी और जो है तो तुम्हारा वो पेशेंट लोगों के मनाते वाई. और मेरी जो है मेडिकल है और मेडिकल से मैं जो है तो नौकर लगा के उससे जो है तो काम लेता और जो है तो मेडिकल चला रहा हूँ. मैं खुद मेडिकल चला था. सरकार से मांग है कि हमको कुछ पैसे नहीं चाहिए, नौकरियाँ नहीं चाहिए, हमको हमारी दुकानें वहाँ पर छोड़ दो. ये दुकानों के ऊपर हम ज़िंदगी गुजारेंगे. अब थोड़ी सी ज़िंदगी रह गई, 80 साल के हम हो गए. अब आप जो है तो हमको ये टाइम में जो है तो रोड पर मत लाओ और रोड पर लाके हमको जो है तो भीख मांगने मत लगाओ. बाजार सावंगी में मौजूद वेटरनरी हॉस्पिटल की जानिब से भी मवेशियों को लाया खरकुत नामी बीमारी से बचाव के टीके लगाए गए. बाजार सावंगी के इस मवेशियों के दवाखाने की हुदूद कार में आने वाले कमोबेश 12 गांवों में बड़े जानवरों में पाए जाने वाले लाल खुरकुत के मर्ज और छोटे जानवर बकरियों भेड़ों की बीमारी PPR से बचाव व एहतियात के लिए इस एनिमल हस्बेंड्री दवाखाने की जानिब से वैक्सीनेशन व टीका अंदाजी का आगाज़ किया गया. बताया जाता है कि इन हुदूद में 6000 बड़े और 10,000 छोटे जानवर हैं. इस वैक्सीनेशन की शुरुआत ममोराबाद वाड़ी इस गांव से की गई और अब तक 1000 गायों, 450 बैल, 150 भैंसों, 900 बकरियों और 300 मेंढियों को वैक्सीन लगाई गई, जबकि आइंदा 15 रोज़ में पूरी हुदूद कार में वैक्सीनेशन की जाएगी. इस तरह का खुलासा एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर वैजापुरे ने किया है. उन्होंने तमाम मवेशी मालिकान से अपील की है कि इस वैक्सीन के लगाए जाने के बाद मज़कूरा अमराज से जानवर का 6 माह तक 1 साल की मुद्दत के लिए तहफ़्फ़ुज़ हो जाता है. इसलिए सभी अपने अपने जानवरों को वैक्सीन लगवाने की पहल करें. 12 जनवरी से शहर में नमो चषक शुरू किया जा रहा है, जिसके राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह किया गया. ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक इस मौके पर 51 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले रखे जा रहे हैं. ऑर्गेनाइजर्स ने ख्वाहिशमंद खिलाड़ियों से अपने इंदराजात करवाने की अपील की है. आया रहे कि इस टूर्नामेंट नमो चषक का दफ्तर डिविजनल स्पोर्ट्स संकुल ही पर होगा. इस टूर्नामेंट में 51 मुख्तलिफ मुकाबले होंगे जो 12 से 17 जनवरी के दरमियान मुनक़िद होंगे. गुज़िश्ता रोज़ 9 जनवरी को इस राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह नामवर अफराद के हाथों किया गया. इस मौके पर योगासन, स्केटिंग और विशों के खेल भी पेश किए गए, जबकि खेल के मैदान में इम्तियाजी और नुमायाँ कारकर्दगी अंजाम देने वाले अफराद का इस तकरीब में इस्तकबाल किया गया. और 12 जनवरी से शुरू होने वाले मुकाबलों में शिरकत व इंदराज के लिए ख्वाहिशमंद खिलाड़ियों से अपील भी की गई. इस तकरीब में मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर भागवत कराड़ समेत मुख्तलिफ नामवर खिलाड़ी और अहम अफराद मौजूद थे. जवाहर नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चुराई गई 63 साइकिलें बरामद की और इस मामले में 3 कमसिन सारिकों को गिरफ्तार कर लिया. चोरी की गई इन साइकिलों की मजमूई कीमत कमोबेश 6,59,000 रुपये बतलाई गई है. पुलिस को इत्तला मिली थी कि 2 कमसिन साइकिल चोर लड़के इंदिरानगर गारखेड़ा परिसर के खुले मैदान में बैठे हैं. पुलिस ने वहां पहुंचकर दोनों को तहवील में लिया और पूछताछ की तो उन्होंने अपने मजीद एक साथी की निशानदेही कर दी और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से साइकिलें सरका करने का इकबाल कर लिया और कुछ साइकिलें वालूज में ले जाकर बेच देने का भी खुलासा उन लड़कों ने किया है. और बाकी मानदा मसरूक़ा साइकिलें घर के पास छुपाकर रखने की मालूमात उन लड़कों ने दी. पुलिस ने मज़कूरा साइकिलें बरामद कर लीं और तीनों मुलज़िमीन को जवाहर नगर पुलिस थाना में लाया गया. इस तरह की जानकारी पुलिस इंस्पेक्टर वेंकट केंद्रे ने दी है. म्हणजे 63 सायकली 6,59,000 रुपयाचा मुद्देमाल रिकवर करण्यात आलेला आहे. नमूद 2 अल्पवयीन मुलांकडून आणि बाकी आणखी एक त्याच्यामध्ये फरार आहे.
आणि लवकरच तो पण म्हणजे सापडेल. बाकी आणखी काही सायकली म्हणजे सापडण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने आमची टीम सध्याला काम करत आहे. आदरणीय ACP साहेब, पाटील सर, DCP नवीन कुमार कावत सर, पोलीस आयुक्त आदरणीय लोहिया सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास चालू आहे. पोलीस स्टेशन जवाहरनगरच्या वतीने सर्व परिसरातील जनतेला आवाहन करण्यात येत आहे की ज्यांच्या कोणाच्या सायकली गेलेल्या नाहीत आणि ज्यांनी पोलीस स्टेशनला अद्याप तो तक्रार दिलेली नाही, अशा बऱ्याचशा सायकली आम्ही रिकवर केलेल्या आहेत. तरी कृपया आपण पोलीस स्टेशनला या, ते सायकली पहा आणि जर आपली सायकल असेल तर ती जे सायकल खरेदी केल्याची पावती असेल किंवा इतर काही ती सायकल तुमची असल्याबाबतचा आयडेंटिटी प्रूफ असेल तर ते घेऊन या. नंतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून नमूद सायकली ह्या मूळ मालकांना परत करण्यात येतील. त्यामुळे सर्वांनी आपण पोलीस स्टेशन जवाहरनगर येथे संपर्क साधावा असं मी सर्वांना आवाहन करतोय, सर्वांना विनंती करतोय. धन्यवाद. पाचोड़ के मौसम्बी बाजार के उखब में एक 12 साला लड़का शदीद जख्मी हालत में पाया गया, जिसके सबब इलाके में खलबली मच गई. इस जख्मी लड़के को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद मजीद इलाज के लिए घाटी अस्पताल लाया गया. तफसीलात के मुताबिक 12 साला लड़का मुजाहिद शाह दोपहर के वक्त खेलने के लिए घर से बाहर गया था. ताहम सर शाम वो यहाँ मौसम्बी मार्केट के अकबी हिस्से में जख्मी पाया गया. मुजाहिद के पेट पर किसी ने वार कर दिया, जिसके सबब उसकी आंतें बाहर निकल आई हैं. मौसम्बी के एक व्यापारी चांद शेख ने लड़के को गाड़ी में डालकर फौरी पाचोड़ के देही अस्पताल में शरीक करवाया, तो उस वक्त अस्पताल के ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर नौमान शेख ने इब्तदाई तिब्बी राहत के बाद उसे औरंगाबाद के घाटी अस्पताल रेफर कर दिया. ख़ास बात यह बतलाई गई कि बच्चे की आंतें बाहर आ जाने के बावजूद खून बहने के कोई निशान दिखाई नहीं दिए. इस वाक़े से मुताल्लिक़ मुतज़ाद बातें कही जा रही हैं, जिनमें 2 अफराद के ज़रिए उसे अगवा करने और छीना झपटी में उसके पेट पर चाकू या ब्लेड से वार करके ज़ख्मी कर देने की बात भी सामने आ रही है. लड़का शदीद खौफज़दा है और कुछ कह पाने की हालत में नहीं है. इत्तला मिलते ही API संतोष माने ने देही अस्पताल जाकर बच्चे के रिश्तेदारों से बातचीत की. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. दल बदली कानून के तहत 16 अरकान असेंबली की नाअहली के मामले पर स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सुनाया अपना फैसला. शिंदे ग्रुप के अरकान असेंबली को करार दिया अहल. शिंदे ग्रुप में जश्न का माहौल, उद्धव ठाकरे ग्रुप में छाई मायूसी. हिट एंड रन कानून के खिलाफ रक्षा ड्राइवर्स भी उतरे मैदान में. शहर और अतराफ में किया चक्का जाम. ऑटो रिक्शा न मिलने के सबब मुसाफिरों को परेशानी का सामना. मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुश्तरका तौर पर निकाला गया डिवीजनल कमिश्नरेट पर मोर्चा. सड़क हादसात पर काबू पाने RTO दफ्तर और दीगर NGOs के इश्तराक से शुरू की गई खुसूसी मुहिम. सिफर हादसात मेरी जिम्मेदारी के तहत हादसा मुक्त रास्ते नामी प्रोग्राम मुनक़िद. मरकजी वज़ीर ममलिकत राव साहब दानवे भी हुए वर्कशॉप में शरीक और हाज़रीन की रहनुमाई. और सारथी, बाटी और महाज्योत नामी इदारों में दाखिलों के लिए गए इम्तहानात का सवालिया पर्चा फिर हुआ लीक. उम्मीदवारों में गम गुस्सा. इम्तहानी मरकज़ पर किया जमकर हंगामा और पेपर मुलतवी करके दोबारा इम्तहान लिए जाने का किया मतालिबा. खातियों के खिलाफ सबक आमोज कार्रवाई की भी की गई मांग. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.